Hello, Assalamu alaikum. Shaji, today we'll be having chapter number two, topic number two, and this will be sent to you as a recorded lecture. ठीक है? So make sure क्योंकि कभी एक दिन आप आते हैं, मुर्तज़ा आते हैं, फिर वो नहीं आता है, ठीक है? So make sure you do watch it क्योंकि that will be tested after the chapter is over, and I'll ask from you guys. ठीक है? So today's topic is organization and management. आप अपनी convenience से but आज ही इसको watch करना है. All right, so learning objectives are draw, interpret, and understand simple organizational charts, role of management, leadership styles, and trade unions. All right, what is an organizational structure? Refers to the levels of management and division of responsibilities within a business. They can be represented on organizational charts. And what is a chart? ये बेसिकली चार्ट का पर्पस क्या होता है? टू शो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू whom. ये सारे लेवल्स ऑफ हायरार्की आपको शो करता है, ठीक है? आपके सब ऑर्डिनेट शो करता है, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल शो करता है, विच विल डिस्कस इन अ मिनट. So this is the example of how you make an organization chart, right? अच्छा, how do you use this? Show work responsibilities and reporting relationships, like कौन किसको answerable है, कौन किसको report करेगा. Allows leadership to more effectively manage growth or change because everyone knows कि उनका उनकी level of hierarchy कहाँ पे lie करती है, ठीक है? वो किस level पे lie करते हैं. Allow employees to better understand how their work fits into the organization's overall scheme. Improves line of communication. I can easily see कि यार मुझे किसको communicate करना directly और किसको नहीं करना directly. Creates a visual employee directory. Now it's very easy to see your part, your link in the organization. अगर structure नहीं होगा and it's all written, documented form में होता, फिर it would have been very difficult. यहाँ मैं देख सकता हूँ मेरा department क्या है, मेरा head कौन है, etc. So on and so forth. Present other types of information such as business, entity structures, and data hierarchies. Right? So this is how organizational charts are used. अच्छा, पर्पस क्या हो जाती? टू मेक द कम्युनिकेशन बेटर, टू डिफाइन रोल्स बेटर. बजटिंग किस तरीके से? यू कैन इजीली बजट योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो भी फाइनेंसेस होंगे, ठीक है? वेजेस आ जाती हैं उसमें, ऑपरेशंस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं. एंड देन डेवलपिंग वर्क फोर्स, यू कैन इजीली सी कि यार कितने बंदे किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और मे बी कितने बंदे अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मैनेजर, हाउ मेनी डू वी नीड, right? So it makes the planning of workforce a lot more easier. अच्छा, now the terminologies that will be used in this chapter are span of control, chain of command, जो बार बार हम use करेंगे, ठीक है? So you need to understand what span of control is. Number of subordinates working directly under a manager in the organizational structure. So for instance, if you look at this example, यहाँ पे आपके पास, if I ask you कि यार मैरी कैरी के पास व्हाट्स द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस मैनेजर, इसके अंडर डायरेक्टली दो लोग काम कर रहे हैं, विच मीन्स हर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज टू, ठीक है? ब्लेस पास्कल के पास स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वन बिकॉज ओनली वन पर्सन इज वर्किंग डायरेक्टली इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये लोग भी इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं उसके अंडर, बट आपने डायरेक्टली देखना. अगेन फॉर दिस गाय इट्स टू, ठीक है? फॉर द मार्केटिंग डायरेक्टर इट्स थ्री, इसके लिए थ्री है स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो दैट इज व्हाट स्पैन ऑफ कंट्रोल इज, डायरेक्टली वर्किंग अंडर समवन, ठीक है? ऑल राइट. स्पैन ऑफ कंट्रोल, अब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है. नैरो का मतलब ये कि वर्किंग पीपल डायरेक्टली अंडर यू काम है, इन दिस केस इट्स टू ओनली. वाइड का मतलब ये है कि वर्किंग पीपल डायरेक्टली अंडर यू इज मोर देन थ्री, नो मोर देन टू, डिपेंड करता है कितना वाइड होगा. सो नैरो एंड वाइड भी, then you can add this in your terminology. Advantages of narrow span of control, यानी अगर number of people working directly under you कम होंगे तब क्या होगा? High degree of control. Let's see जी, मेरे पास सिर्फ दो बंदे मेरे पास जिनको मैं हेड करता हूँ, तो I can easily control them. Manager is more familiar with individuals. ठीक है जी, I personally know these guys क्योंकि they are only two. अगर वो 10 होते तो फिर मुश्किल हो जाता मेरे लिए. क्लोज सुपरविजन कैन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक. नाउ जितने कम बंदे होंगे मेरे अंडर उतनी बेहतर सुपरविजन भी होगी, राइट? और जितने ज्यादा होंगे उतना मसला हो जाएगा. हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या होंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट? कि कम पीपल, मे बी वन और टू पीपल आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर मी. मोर मैनेजमेंट लेवल्स, अगर कम लोग होंगे तो आपके लेवल्स ऑफ हायरार्की बढ़ जाएंगे, विच मीन्स मोर पोजिशंस, विच मीन्स इट हैज टू बी मोर एक्सपेंसिव फॉर द बिजनेस. आप ज्यादा वेजेस या सैलरीज पे कर रहे होंगे. स्लोअर डिसीजन मेकिंग, अगेन नैरो जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली टॉल भी होता है, अभी आपको कंबाइन करके भी दिखाते हैं.
तो फिर उसमें डिसीजन लेना थोड़ा सा स्लो हो जाता है. आइसोलेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इजंट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर मैनेजमेंट या विद द एम्प्लॉइज. यहाँ पे फिर आइसोलेशन हो जाती है. डिस्करेजेस एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, क्योंकि इफ आई फील कि यार मेरे अंडर 2 लोग हैं तो आई विल बी इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम. ठीक है, सो आई वुडंट बी अलाउइंग देम टू टेक देयर ओन डिसीजंस. यहाँ पे मोटिवेशन कम हो सकती है एम्प्लॉइज की. Wide span of control में, which means working number of people working directly under one, a manager or maybe someone, anyone, is greater than 2-3 at least. ठीक है, तो यहाँ पे advantages क्या होंगे? Increased efficiency. Why? Because ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो efficiency ज़्यादा होगी और cost spread हो जाएगी. That's why it's written reduced cost. Quicker decision making. Now जो wide होगा ना, wide span of control, उसका structure थोड़ा छोटा होगा. अभी आपको दिखाते भी हैं कैसे. तो वहां पे आप इजीली डिसीजन इंप्लीमेंट करवा सकते हैं. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि इफ वन पर्सन इज एब्सेंट तो फिर देयर आर मेनी अदर्स हु कैन टेक द प्लेस ऑफ हिम, राइट? तो काम रुकेगा नहीं. हायर लेवल्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन बिकॉज नाउ ऑटोनमस भी होगा. आई कैन डेलीगेट टास्क टू माय लेबर फोर्स एज वेल, क्योंकि लेट से मेरे अंदर 10 लोग काम करते हैं तो एटलीस्ट मैं उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी जरूर दूंगा, बजाय इसके कि मैं सबको सुपरवाइज करूं स्ट्रिक्टली. ठीक है, हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या है फॉर द मैनेजर? इट मींस लेस कंट्रोल. मैं जितना बेहतर 2 लोगों को कंट्रोल कर सकता था उतना अच्छा मैं 10 लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकता. पॉसिबल लैक ऑफ फेमिलियरिटी. आई माइट बी नोइंग समवन, आई माइट नॉट बी नोइंग समवन. ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो मैं सबसे पर्सनल कॉन्टैक्ट रखना मुश्किल हो जाता है. मैनेजर स्प्रेड थिन अगेन, विच मीन्स मैनेजर का कंट्रोल कम होगा. Lack of coordination or synchronization. For example, if only 2 people were working under me, which was narrow span of control, वहां पे मैं उनको सिंक्रोनाइज यानी आपस में एक साथ लेके चल सकता था. यहाँ पे 10 लोगों को 6 लोगों को साथ लेके चलना इज समवॉट डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम चांस है कि दे आर मूविंग इक्वली फॉरवर्ड, राइट? अच्छा, ये था स्पैन ऑफ कंट्रोल. नाउ अदर टर्मिनोलॉजी इज चेन ऑफ कमांड, line of authority that extends from one level of an organization's hierarchy to the next, from top to bottom, and makes clear who reports to whom. For example जी, let's move back. आपको मैंने ये तो बता दिया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली आप हॉरिजॉन्टली चल रहे होते हैं. ठीक है, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1. चेन ऑफ कमांड ऑन द अदर हैंड आप वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं. यानी कितने लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं? 1 लेवल ऑफ हायरार्की, 2 लेवल ऑफ हायरार्की, 3rd, 4th. ठीक है, इस तरह की. सो चेन ऑफ कमांड हैज टू डू विद द वर्टिकल प्रोग्रेस ऑफ या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है दैट इज कंसर्न विद हॉरिजॉन्टल, कि कितने लोग डायरेक्टली आपके अंडर काम करते हैं. तो टेकिंग दैट फॉरवर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ऑफ कमांड, देखो इन एन आर्मी फॉर एग्जांपल मिलिट्री में ये है उसकी चेन ऑफ कमांड. अब यू आर नॉट सीइंग कि एक कंपनी के मारे के कितने प्लेटून लीडर्स आते हैं या उसके अंदर कितने स्क्वाड लीडर्स आते हैं, ये नहीं हम देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कितनी पोस्ट के लेवल है. सोल्जर, फिर स्क्वाड लीडर बनता है, फिर प्लेटून लीडर बनता है, कंपनी कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल एंड जनरल. दिस इज नोन एज चेन ऑफ कमांड. कितने लेवल ऑफ हायरार्की हैं. ठीक है, अच्छा. नाउ सी, अब हमने इसको कंबाइन करना है. शॉर्ट चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि लेवल ऑफ हायरार्की जो है वो कम है आपके पास. यानी इसमें देखो सिर्फ 3 लेवल्स हैं, 1, 2 एंड 3. ठीक है, दिस इज व्हाट शॉर्ट चेन ऑफ कमांड इज. एंड लॉन्ग चेन ऑफ कमांड में यू हैव मोर देन 3, या ऐसा होगा कि आपको टॉस स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. ठीक है, इस केस में वी हैव 4 levels of hierarchy. So this is relatively a longer chain of command than the previous one. इसमें सिर्फ 3 levels थे. ठीक है, ये है आपकी long chain of command. Now let's look at chain of command and span of control together. देखो एक second, let me. All right. Chain of command and span of control. देखो longer the chain of command, यानी ज्यादा levels of hierarchy जितने होंगे, टॉलर स्ट्रक्चर होगा और नैरोअर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, एज यू कैन सी इन द लेफ्ट डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे लंबा है, लॉन्गर चेन ऑफ कमांड है, बट स्पैन ऑफ कंट्रोल कम कम है. सी, इसके अंदर 2, इसके अंदर भी 2, इससे ज्यादा नहीं हो रहा. अच्छा, वे देयर इज अ शॉर्टर चेन ऑफ कमांड, यानी लेवल्स ऑफ हायरार्की कम होंगे, शॉर्टर स्ट्रक्चर होगा बट वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा. सही है, यानी ब्रॉड होगा. ये एक के अंडर 5 काम कर रहे हैं पीपल. So this is how it goes together. If you see, तो longer chain of command के साथ narrow span of control चलता है और shorter chain of command के साथ wider span of control चलता है. ठीक है, so that's how it's linked.
ऑल राइट, लॉन्गर चेन ऑफ कमांड, इसके फीचर्स क्या होंगे? नैरो एंड लॉन्गर, कम्युनिकेशन स्लो एंड लेस एक्यूरेट। व्हाई? बिकॉज आपके पास लेवल्स ऑफ हायरार्की बहुत है ना, तो यहाँ से यहाँ पास डाउन होगा, यहाँ पास डाउन होगा, यहाँ पास डाउन होगा, तो इट्स स्लोअर एंड लेस एक्यूरेट। मैसेज थ्रू मेनी लेवल्स, अगेन दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग। वर्कर्स आर लेस ट्रस्टेड, क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन आनी है, वो आपने सिर्फ फॉलो करनी है। मेक लेस डिसीजंस, लेस जॉब सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू आर नॉट ऑटोनमस, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आपने उस पर काम करना है। एंड देर इज लेस रूम फॉर मिस्टेक्स, क्योंकि देखो एक मैनेजर जो है लेट से, उसने सिर्फ 2 लोगों पे सुपरवाइज करना है, सिमिलर इसने सिर्फ 2 लोगों पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि इधर स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स का चांस इसलिए कम हो जाता है। यानी देखो, है तो ये बेनिफिट भी कि मिस्टेक्स का चांस कम हो जाता है, बट देर इज मच मोर प्रेशर ऑन द लेबर फोर्स देन, ठीक है, क्योंकि दे वुड नो कि यार हमसे गलती हुई तो इजीली पकड़ी जाएगी, एंड देयरफॉर might not be so motivating for the workforce. अच्छा, shorter chain of command and wider span of control के features क्या हैं जी? Manager responsible for many subordinates as we discussed. More delegation, यहाँ पे आप निचले level पे you can easily transfer them authority and responsibility to do some tasks. Less direct control of subordinates, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो under one control, ठीक है, तो यहाँ पे personalized contact भी नहीं होता and you don't have much control over your subordinates. बट दिस डज लीड्स टू जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का टास्क कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की पे जाके आप, रिमेंबर जॉब एनरिचमेंट क्या थी, कि आप डिफरेंट लेवल्स पे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी योर टास्क, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर टास्क कीप्स ऑन चेंजिंग, सो दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है जी। अच्छा, नाउ कम्स द रोल ऑफ मैनेजमेंट, हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि प्लानिंग है, व्हाट डू यू प्लान, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजिंग है, मींस डेलीगेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आता है? फॉर बिजनेस परस्पेक्टिव, setting aims and targets for the organizations to achieve. It will give the department and its employees a clear sense of purpose and direction. Managers should also plan for resources required to achieve these targets, the number of people required, and the finance needed. यानी आप प्लानिंग किस किस चीज की कर रहे हैं? What resources do we need? अब resources का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लेबर फोर्स भी होता है, ठीक है, फाइनेंस तो ऑब्वियसली होता है, एंड एटसेट्रा। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज, ठीक है। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग। जब आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं यानी अचीव कर लेते हैं, दिस विल इंक्लूड एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटिंग। अब आपने जब रिसोर्सेज को मैनेज कर लिया है, नाउ यू नीड टू डेलीगेट टास्क, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। फिर कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, व्हाट आर दीज? बेसिकली रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने और क्या क्या करना है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या करना है आपने? आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बिटवीन कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है, बिकॉज लेट्स से जी इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन देन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, फिर हो सकता है आप रॉन्ग डिसीजन ले। फॉर एग्जांपल जी, मार्केट डिपार्टमेंट खुद से सोच रहा है कि यार वी विल स्पेंड $100,000 ऑन मार्केटिंग दिस समर, whereas they are not communicating या coordinating with the finance department. अगर finance department से वो पूछ लेते तो पता चलता जी we only have 20,000 allocated for marketing. So that's what the coordination does, ठीक है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे विद कोऑर्डिनेशन, इट वुड बी अ बेटर डिसीजन। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाएंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे मसला हो जाएगा। सो ये मैनेजमेंट के काम है कि टू कीप अप विद द कोऑर्डिनेशन। देन कम्स कमांडिंग। Managers need to guide. Commanding is leading, right? Lead and supervise their employees in the tasks they do and make sure they are keeping to their deadlines and achieving targets. तो जब तक कमांड नहीं करेंगे, लीड नहीं करेंगे, तब तक योर एम्प्लॉइज, योर वर्कफोर्स विल नॉट डू द वर्क, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। वट एवर यू डू इवन इन योर पर्सनल लाइफ, आप जो भी करते हैं, जब तक आप उसको इवेल्युएट नहीं करते कि यार हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, तब तक यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। सिमिलरली बिजनेस भी, पहले जितने भी उन्होंने स्टेप्स, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए, एट द एंड दे नीड टू सी क्या जो भी हमने किया था, हाउ इफेक्टिव वाज दैट। यानी वो बेसिकली ये असेस करना चाह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। If some employees fail to achieve their target, the manager must see why it has occurred. ये जो why का आंसर होगा, only this will lead to improvement. Maybe they might be short on training, उनको फिर ट्रेनिंग दी जाए, उनकी स्किल सेट बढ़ाई जाए, ठीक है। सो कंट्रोलिंग जो होगा, एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग इन अदर वर्ड्स? इवैल्यूएटिंग, ठीक है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं एंड यू कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस एंड देन मूव ऑन, ओनली देन यू विल सी एन इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये 5 चीजें यू नीड टू रिमेंबर कि ये हैं रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, then comes delegation. Delegation means giving a subordinate the authority to perform particular tasks efficiently. आप सिर्फ authority नहीं देते, आप उसको responsibility and authority दोनों देते हैं, ठीक है। Increasing trust of workers by managers. भाई मैं अपने subordinate को क्यों कोई task assign कर सकता हूँ when my position might be at stake.
तो इसलिए कर सकते हो क्योंकि आई ट्रस्ट दैट एम्प्लॉय कि यार दिस गाय कैन डू दिस जॉब परफेक्टली फाइन, तो मैं उसको उसी को कहूँ कि यार यू गाइस नीड टू डू दिस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर अथॉरिटी, आपने जैसे करना हो कर लीजिए। रिडक्शन इन डायरेक्ट कंट्रोल बाय सुपरवाइजर्स वंस टास्क्स आर डन बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, इससे फिर मैंने स्ट्रिक्ट चेक भी नहीं रखना क्योंकि आई एम गिविंग देम द अथॉरिटी टू डू सम टास्क, तो फिर माई स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑल्सो डज नॉट हैव टू बी स्ट्रिक्ट एनी मोर, ठीक है जी। ऑल राइट, एडवांटेजेस टू मैनेजर्स ऑफ डेलीगेटिंग, अगर मैनेजर्स काम को डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट वर्कफोर्स, उनके लिए क्या फायदा, मैनेजर्स कैन नॉट डू ऑल द वर्क बाय देमसेल्व्स, इट्स बेटर, अच्छा मैनेजर वही होता है जो काम करवा सके, राइट। Managers can measure the efficiency and effectiveness of their subordinates' work. However, managers may be reluctant to delegate as they may lose their control over the work. For example, जी अगर मैनेजर खुद is not competent enough and if he feels कि यार कि किसी वर्कर ने उससे भी बेहतर परफॉर्म कर दिया तो फिर उसकी जॉब खतरे में जा सकती है, and therefore sometimes managers are reluctant to delegate jobs क्योंकि they might see a potential threat to their position. What about the advantages to subordinates? अगर उनको टास्क दिया जाता है, the work becomes much more interesting and rewarding, and they will feel कि यार trust is being put in them, तो उनकी job satisfaction increase हो जाएगी, loyalty increase हो जाएगी, can act as a method of training and opportunities for promotions if they do a good job. ये जब होता है when you delegate task, तो this is seen by the workforce as an opportunity to grow. या फिर वो अगर बेटर परफॉर्म करते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वर्कर्स ये सोच रहा होगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हुई then I might get promoted, मेरी ग्रोथ हो सकती है, ये सारे बेनिफिट सबऑर्डिनेट्स को होते हैं, ठीक है। अच्छा, we have three type of leadership styles: autocratic, laissez-faire, democratic. Autocratic में it's just do x का मतलब है जी do this particular task, it's just an instruction which is centralized authority, इसमें there is no or low participation of the workforce. ये basically let's say military है, आपने उधर कह दिया भाई जो करना है, जो कह दिया वो करना है। ऑटोक्रेटिक में यू आर नॉट टेकिंग द ओपिनियंस ऑफ एनी वर्कफोर्स, उनको ना आप इन्वॉल्व करते हैं, आप कहते हैं यार ये करना है तो दैट्स इट, दिस इज ऑटोक्रेटिक। अच्छा, देन कम्स लेजेस फेयर, डू एक्स और वाई एज यू सी फिट, यानी इसमें आप इतनी अथॉरिटी दे देते कि जैसे आपको बेहतर लगता है आप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट कहती है आपका टास्क है, आपने ये करना है, ये करना है, इट्स योर मर्जी हाउ टू डू इट, ठीक है। दैट इज लेजेस फेयर, लेजेस फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड मींस लीव टू डू, आप बेसिकली उन पे छोड़ रहे हैं कि वो उन्होंने एक टास्क कैसे करने हैं और कौन सा टास्क पर करना है। देन कम्स डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी क्या होती है जी, बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसी तरह डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, नाउ यू आर टेकिंग द ओपिनियंस ऑफ योर वर्कफोर्स एम्प्लॉइज के आर विच डिसीजन टू इम्प्लीमेंट, यानी योर वर्कर्स आर नाउ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, so which means the involvement is high, the participation is high and feedback system है basically, यहाँ पे motivation of the workforce is the best, ठीक है। विच ऑप्शन इज द बेस्ट, अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर टाइम की शॉर्टेज है एंड यू नीड टू गेट समथिंग डन तो फिर इट्स जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, ऑटोक्रेटिक तब काम आएगा, ठीक है। या अगर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलिट्री है या वो स्ट्रिक्ट है, फिर वहां पे भी ऑटोक्रेटिक काम आएगा। लेजिस फेयर में अच्छा दे यहाँ पे अगर ऑप्शंस हैं आपके पास टू डू सम पर्टिकुलर टास्क, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डूइंग टास्क ए टास्क बी, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो यू कैन लीव इट टू द वर्कफोर्स के उन्होंने जो करना है जैसे करना है एज दे सी फिट। डेमोक्रेटिक में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा और जब आप वर्कर्स को बेसिकली पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाना चाहते होंगे, only then this option is best. So there is no absolute answer to which option is the best, depends on the situation, on the scenario. But you need to remember ये three types के leadership styles हैं और सबका मतलब क्या होता है। अच्छा, then comes trade unionism or trade union. It is a group of workers who have joined together to ensure their interests are protected. और क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहिए उनको, अच्छी वेजेस एंड सैलरी चाहिए, वर्किंग कंडीशन या हाइजीन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फेयर एंड जस्ट सुपरविजन, पावरलेसनेस, नीड टू बीइंग एंड व्हाट एल्स, अनफेयर डिसमिसल से उनको रोकना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन वर्क टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वर्कफोर्स। फॉर इंस्टेंस ट्रेड यूनियन, इफ यू कैन सी इन दिस फिश एग्जांपल, अगर इंडिविजुअली एक्ट करेंगे एम्प्लॉइज तब एम्प्लॉयर विल बी स्ट्रॉन्गर, और अगर यूनिटी यानी जो नीचे वाली ऑप्शन है आपके पास, इसमें ट्रेड यूनियन बना हुआ है बेसिकली कलेक्शन ऑफ या इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑल द वर्कफोर्स, और जब वो कलेक्टिवली एक्ट करेंगे यानी उनके पास बार्गेनिंग पावर अच्छी आ जाएगी, यानी अब वो अपने राइट्स मनवा सकते हैं बेहतर तरीके से,
ठीक है जी। ड्रॉबैक्स क्या है? मेंबर्स नीड टू पे सब्सक्रिप्शन फी, जिसने ज्वाइन करना है उसने मेंबरशिप फीस भी पे करनी है, सो दैट्स अ ड्रॉबैक। फीस के लिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके ट्रेड यूनियंस के, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने उसको फुलफिल करना होता है। दे मे रिक्वायर टू टेक इंडस्ट्रियल एक्शन इवन इफ दे डोंट एग्री। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल एक्शन क्या है वो हम अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड दैट माइट बी प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज द वर्क फोर्स, राइट? सो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अच्छा, नाउ यू नीड टू गो ओवर इट टुडे इंशाल्लाह एट योर ओन कन्वीनियंस, बट आज की तारीख में कर लेना है। आई लास्ट एट द एंड ऑफ द डे एंड वो टेस्ट से पता लग जाएगा किसने किया था किसने नहीं किया था। ठीक है जी। सो आई विल सी यू अराउंड एंड लेट मी नो इफ दिस वे इज द बेटर वन। मैं डेली आपको रिकॉर्ड करके इसी तरीके से सेंड कर दिया करूँगा। Thank you.